Good evening, students. We are going to start over the next topics. Lecture number 5, light. It's very simple topic. Um, okay, we'll continue. Here given what you have to learn today. We'll discuss first about the sign convention of spherical mirror. Means where we are considering the positive, where we are considering negative. I told that day also the same way. That according to the axis, x-axis, y-axis. Here generally we have the positive and positive, negative and positive. Here negative, negative, and here positive, and y is negative. Here like this we are going to consider, and here this we are saying that incident, depending upon the incident ray. Okay, negative sign where from the coming. Here mirror formula. A mirror formula, it is a relation between the object distance, image distance, and focal length. The mirror formula is 1 upon u plus 1 upon v equals to 1 upon f. Magnification of the spherical mirror. How we are going to find the magnification? That is, magnification depends upon the size of image by size of object, or we can say the height of image by height of objects, or minus v by u also we can write. Use of spherical, we know very well. We can already discussed about this use of spherical mirror, concave mirror, convex mirror. We already discussed about that. Now numerical problems on the spherical mirrors, that is related to that same formula, that related two formulas. We have to discuss the numerical formulas also, numerical problems also. देखेंगे क्या क्या है इसमें. Now here given about that sign convention. Sign convention in spherical mirror. What do you have to consider here? Separately we consider here the suppose this is a concave mirror. Any mirror we can take in. Here just we have to consider the pole. क्या center पे क्या consider करना है आपको? Pole. Any mirror, the concave or convex mirror. Let me consider first concave mirror now. The all the incident rays we are considering always negative. We can incident ray for here. If we consider this is from incident ray or object distance. If you, when we always you have to consider that object distance is negative for any mirror. Any mirror object distance is negative. Okay. Here, if you are keeping the object here now, suppose let me consider the object is here, that distance is always negative, and we are keeping object upright. Means object size of object will be the positive. Getting? And here whatever the image if you are finding, or the if suppose in the same we'll discuss first about the concave mirror first. ये mirror के बारे में देखेंगे, concave mirror के बारे में देखेंगे. तो इसमें क्या होगा तुम्हारा object distance u is always negative. हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं. ओके, यहीं पे लिखता हूँ concave mirror. इसमें u क्या होगा हमेशा नेगेटिव. फोकल लेंथ आल्सो नेगेटिव. यहाँ पे concave mirror रेडियस का सेंटर कहाँ पे आएगा इसका? यहाँ पर. फोकल लेंथ कहाँ पे आएगा इसका? यही साइड में. तो फोकल लेंथ भी क्या होगी उसकी नेगेटिव, और रेडियस भी क्या होगी उसकी नेगेटिव. फोकल लेंथ इज आल्सो नेगेटिव, एंड साइज ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें पॉजिटिव होगा. और इसमें मिरर्स इमेज कहाँ आते हैं है ना. तो इफ द इमेज इज सपोज रियल इमेज आती है, तो इमेज कहाँ आएगी तुम्हारी नीचे आएगी. तो इमेज क्या होगा तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज the negative when the image will be the real. कब आएगा तुम्हारा नेगेटिव? जब इमेज क्या होगी तुम्हारी रियल होगी, तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे आ रही है आपकी सेम साइड आ रही है. तो वो कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा इमेज क्या होगी तुम्हारी नेगेटिव. when the image will be virtual, the height of the image is positive. कब आएगी पॉजिटिव आएगी? जब इमेज क्या होगी तुम्हारी वर्चुअल होगी. बराबर है. ये कंडीशन में आपकी क्या होगा, ये मिरर में आपने देख लिया. इसमें हमेशा याद रखना है आपको. और v इमेज क्या होगा, इमेज v डिस्टेंस ऑफ इमेज इन केस ऑफ रियल इस क्या होगा तुम्हारा रियल आता है सपोज, तो क्या होगा आपका रियल आता है, तो क्या होगा v तुम्हारा नेगेटिव है ना. रियल इमेज आती है तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज वेल एज इमेज डिस्टेंस विल बी द नेगेटिव. अब v पॉजिटिव कब आएगा आपका बोलिए? इमेज क्या होगी तुम्हारी वर्चुअल. समझ में आ गया. ये शॉर्टकट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लिए. इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकस इज आल्सो नेगेटिव. ओके, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव.
द हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव व्हेन द इमेज विल बी गिवन रियल वन। रियल इमेज देता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्या होगा चाहिए तुम्हारा, वो नेगेटिव है, कॉन्केव है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमेज इज पॉजिटिव कब आएगा, जब इमेज क्या होगी तुम्हारी वर्चुअल होगी, है ना। तो जब इमेज तुम्हारी वर्चुअल होगी, जब क्या आएगा पॉजिटिव। द वी यानी इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस क्या आएगा तुम्हारा नेगेटिव कब आएगा, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा रियल डिस्टेंस, है ना। इमेज क्या आएगी तुम्हारी रियल आती है तो वो क्या है तुम्हारा वी भी हमेशा नेगेटिव। वी पॉजिटिव कब होगा आपका, जब तुम्हारा वर्चुअल होता है, जब क्या आएगा वी तुम्हारा पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ द कॉन्केव। एंड सेम अबाउट द कॉन्वेक्स। अभी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर अभी कॉन्केव समझ में आ गया आपको, हाँ। तो अभी मैं देखो कॉन्वेक्स कॉन्केव के बारे में बात, अभी ये मिरर तुम्हारा इस तरह से सही है ना। तो यहां पे भी क्या आएगा, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू तो हमेशा नेगेटिव आएगा, बराबर है। यू क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। तो इसका सेंटर कहां पर है, इसका ये मिरर का फोकस कहां पर है, रेडियस कहां पर है, पॉजिटिव साइड पर। तो ये मिरर का हमेशा फोकस क्या आएगा आपका पॉजिटिव। एफ क्या आएगा इसमें, यहां पे देखो एफ क्या था ऑलवेज नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा फोकस क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। फोकस पॉजिटिव, रेडियस भी क्या आएगी आपकी, रेडियस भी पॉजिटिव, है ना। इमेज, इमेज कहां पे आएगा इसका, इमेज ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज कहां पे आएगी इसकी, ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो इमेज कहां पे यही साइड में आ रही है। तो इमेज डिस्टेंस v इज ऑलवेज, v भी हमेशा क्या आएगा आपका पॉजिटिव। अभी इमेज की साइज कैसी होती है इसकी, इमेज ऑब्जेक्ट साइज भी ऊपर होती है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एज वेल एज हाइट ऑफ इमेज इज आल्सो पॉजिटिव। समझ में आ गया आपको क्या डिफरेंस है बेसिकली मिरर में, कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्केव मिरर में क्या है देखिए, तो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। फोकल लेंथ भी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आएगा, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव कब, जब रियल है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब आएगा, जब वर्चुअल है। हाइट ऑफ सॉरी इमेज डिस्टेंस कितना आएगा नेगेटिव कब, रियल है। और वी पॉजिटिव कब आएगा तुम्हारा, जब क्या है तुम्हारा वर्चुअल है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो जो वी इज पॉजिटिव व्हेन द इमेज विल बी द वर्चुअल। इमेज जब वर्चुअल आएगी तो क्या होगा तुम्हारा वी तुम्हारा क्या होगा पॉजिटिव, अदरवाइज वी क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव। समझ में आ गया बात, है ना। यहाँ पे जैसे कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन में कैसे अपन स्टार्ट करें जीरो से, है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड, ये पे इंसिडेंट रे सोर्स है यहाँ पर, है ना। सोर्स से तुम्हारा लाइट निकल रहा है, जहां पे तुम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो व्हाइट वाला कलर जो है ये कॉन्केव के बारे में बताया मैंने यहाँ पर, है ना। जो एलिश कलर है वो किसके बारे में, तुम्हारा ऑरेंज जो कलर है इसके बारे में किसके बारे में बताया मैं, कॉन्वेक्स के बारे में, है ना। तो यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट करने मिलेगा। जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमेशा अपन एक्स ले रहे हैं, तो एक्स ले रहे हैं तो ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे ये एक्स ले, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव बताया मैंने आपको, है ना। ये पॉजिटिव यानी कि डिस्टेंस हो गया, और वाई यानी क्या तुम्हारी क्या हाइट। तो यहाँ पे ये दोनों भी पॉजिटिव है ना। जैसे कि कोऑर्डिनेट है आपको पता है जैसे नंबर लाइन में, तो यहाँ पे एक्स यानी ये नंबर लाइन पे जो आ रहा है इस पे क्या आता है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, इस पे क्या आ रहा है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस। ये क्या प्रिंसिपल इमेज डिस्टेंस यानी एक्स आ गया, और ये क्या है तुम्हारा हाइट ऊपर जा रहा है, ये इसे किससे रिलेट कर रहा है तुम्हारे हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट निगेट करने वाला कौन है तुम्हारा वाई। समझ में आ गया। यहाँ पे एक्स क्या है, यहां से यहां पे क्या देखो नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव क्या दिखा रहा है तुम्हारा एक्स एक्सिस जब है ये साइड में, तो ये क्या दिखा रहा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है तुम्हारा यू, और ये क्या है तुम्हारा बता रहा है यहाँ पे सपोज कभी यू भी आ सकता है और वी भी आ सकता है ना। इमेज भी क्या है ये साइड में एक्स एक्सिस पे आएगा ना, और यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा यू और वी, एक्स भी आएगा वाई भी आएगा, है ना। यहाँ पर सॉरी यहाँ पे तो यू नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ वी आएगा, बिकॉज यू इज ऑलवेज ऑन दैट नेगेटिव साइड। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा आपका वी आएगा। ये क्या आ गया हाइट, हाइट तुम्हारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हाइट तुम्हारी बहुत बार हाइट तुम्हारी इसमें ये इमेज में आती है, कॉन्केव मिरर में हाइट नीचे आती है। तो हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी आपकी यहाँ पर नेगेटिव, और वर्चुअल आती है तो हाइट कहाँ पे आएगी आपकी सीधी आएगी,
है ना, कहीं पे भी आने दो, है ना, सीधी आएगी, तो वो भी क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव। इज इन डाउट इन दैट? कुछ डिफिकल्टी है इसमें? समझ में आ गया ना? ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये हमेशा बार बार आपने को आ गया। तो मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, तीनों में का रिलेशन है, इसको इसे क्या कहते हैं अपन? मिरर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, है ना। ये तुम्हारा क्या है? सिंपल मिरर फॉर्मूला, तीनों में का। u क्या है इसमें? u क्या है? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आपको पता होगा u क्या है? हमेशा नेगेटिव। डिस्टेंस कुछ भी देता है तो आपको कंसीडर करना है हमेशा उसको नेगेटिव में लिखना है। v इज अ इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस रियल देता है तो क्या करना है आपको? अगेन इट विल बी ना नेगेटिव। ऑलवेज वर्चुअल देता है तो v क्या आएगा? पॉजिटिव, है, ध्यान रखना है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अभी हमेशा मेंशन नहीं करता है, मिरर का नाम बोलता है। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में तो फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए फोकल लेंथ क्या है। सिर्फ आपको एग्जांपल में न्यूमेरिकल्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है ना। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर 15 सेंटीमीटर, तो आपको 15 पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कैसे समझ में आ गया आपको? नेम ऑफ द मिरर, मिरर के नाम से समझ में आना चाहिए। कॉन्केव मिरर देता है नेगेटिव लिखना है, कॉन्वेक्स मिरर देता है तो, अभी इमेज कभी कभी हाइट देते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ भी देते हैं, मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स, इट विल बी द और हाइट ऑफ द इमेज कैसे वर्चुअल आ रही है रियल आ रही है, उस पर भी आपको समझना पड़ेगा कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। मिरर फॉर्मूला ध्यान में आ गया आपके? यहाँ पे और आपको रिलेशन लगेगा आपको, साथ ही साथ में ये भी रिलेशन मालूम है आपको, फोकल लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो वो भी आपने को लगेगा काफी बार। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? इट इज अ रेशियो। मैग्निफिकेशन क्या है तुम्हारा? रेशियो। मैग्निफिकेशन को कोई यूनिट नहीं होता है। क्या होगा यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन? क्या होगा? कोई यूनिट होगा मैग्निफिकेशन को? इट इज मैग्निफिकेशन हैविंग नो यूनिट्स, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन अपन दिखाते हैं हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडिंग बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और माइनस v बाय u, यानी द इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर के बारे में है ना, फॉर मिरर, ये क्या इसको बोलते हैं? मैग्निफिकेशन फॉर मिरर के बारे में। लेंस के बारे में ये पहला पार्ट सेम है ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, खाली उधर का चेंज हो जाएंगे, वो आप बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको दिखता होगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है? उसकी इमेज हो सकती है, नहीं एक्चुअली इमेज नहीं है, ये और ये कॉइन पूरा अलग है ना। चलो अपन कंसिडर करेंगे वैसे ही है थोड़ा बहुत। तो साइज क्या होगी? इमेज इसकी ये साइड में, इसका मतलब ये कौन सा है? वर्चुअल है ना, वर्चुअल। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है इसमें, और ये भी क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव। हाइट उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा तुम्हारा? ये कितना गुना बड़ा है, सब अपन कंसीडर करता है इतना है साइज, तो इससे क्या है तुम्हारा? ये 2 गुना बड़ा है ना। तो फिर क्या है? हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी तुम्हारी? सपोज ये 2x है और ये कितना है? x है ना। तो कितना मैग्निफिकेशन कितना आएगा आपका? 2x डिवाइडिंग बाय x, इतना कितना मैग्निफिकेशन कितना आया फिर इसका? 2। इस तरह से निकालना पड़ेगा आपको, है ना। दोनों भी सीधे सीधे हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव। अब इसमें देखते होंगे, सपोज ये तुम्हारा मिरर है, बराबर है। ये क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u है, और ये क्या है तुम्हारा? इमेज डिस्टेंस क्या है? v है, माने -v बाय -u, तो है ना। -v कितना है? -v डिवाइडिंग बाय -u, माइनस माइनस पॉजिटिव कैंसिल, और ये भी क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो इन शॉर्ट, जब तुम्हारा इमेज देता है तुम्हारा वर्चुअल देता है, तो इसके वो कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव। समझ में आ गया? वर्चुअल देता है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव। और इमेज रियल होती होंगी तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? नेगेटिव, है ना। ये क्या है तुम्हारा? मैग्निफिकेशन वर्चुअल में, मैग्निफिकेशन वर्चुअल केस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वर्चुअल में आता है तो हमेशा क्या रहेगा? मैग्निफिकेशन। रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका? इज नेगेटिव। समझ में आ गया? वर्चुअल में देता है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा आपका? नेगेटिव में आ सकता है ना। तो देखेंगे अपन, डिपेंड करेंगे एक्चुअली, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे भी। एक्चुअली रियल वर्चुअल पे अपन नहीं कह सकते एग्जैक्टली, तो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा साइज। दोनों भी सीधे है तो पॉजिटिव, यहाँ पे एक्चुअली वर्चुअल है ना, यहाँ पे क्या है? वर्चुअल है, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव है। रियल में क्या होगा तुम्हारा? ऑब्जेक्ट यहीं पे होगा, नीचे हो जाएंगी उल्टी, बराबर है। रियल में देता है तो क्या आएगा तुम्हारा? मैग्निफिकेशन क्या आएगा? नेगेटिव। उल्टे है ना, ऑब्जेक्ट सीधा हो रहा है और इमेज क्या आ रही है तुम्हारी? नीचे। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव,
है ना। तो रियल में क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव और वर्चुअल में मैग्निफिकेशन क्या होगा पॉजिटिव, इतना आपको याद रखना है। समझ में आ गया। आप देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यूजिंग द मिरर फॉर्मूला प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस v फॉर द प्लेन मिरर। तो आपको क्या करना है, u इक्वल्स टू v दिखाना है। कैसा बताना है कि इन केस ऑफ प्लेन मिरर, और इस्तेमाल क्या करना है आपको, मिरर फॉर्मूला, है ना। तो मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। अभी आपको मैंने बताया फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है ना। तो अभी सपोज ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का रेडियस है तो आप इसका हाफ निकाल सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर है, इसका हाफ आप निकाल सकते हो। प्लेन मिरर का रेडियस क्या होगा, इन्फिनिटी, बराबर है। इस प्लेन है, इसका प्लेन का रेडियस होगा क्या, नहीं, तो इसका प्लेन का आर कितना हो गया तुम्हारा, आर इज इन्फिनिटी। तो फोकल कितना आएगा, इन्फिनिटी बाय 2, अगेन इन्फिनिटी। फोकल लेंथ कितना हो गया प्लेन मिरर में, फोकल लेंथ कितना हो गया फिर इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे एफ की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, इन्फिनिटी लिखूंगा, सही है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, ऑलवेज नेगेटिव, है ना। यहाँ पे मैं प्लेन मिरर निकाल रहा हूँ सपोज फिगर, ये क्या है तुम्हारा प्लेन मिरर है, बराबर है। यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट है, यू है। यू क्या होता है हमेशा यहाँ पर नेगेटिव, इसकी इमेज क्या आ रही है, ये कंडीशन में आ रही है ना, पॉजिटिव में आ रही है। तो अभी आपको दिखाना है कि यू इक्वल्स टू वी है डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा मैग्नीट्यूड में सेम है। तो एफ कितना हो गया, समझ में आ गया अपने को, इन्फिनिटी होता है। देखो अभी 1/u कौन सी साइड में है तुम्हारा, नेगेटिव साइड में, इक्वल्स टू सॉरी प्लस 1/v, बराबर है, इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, 1/-u प्लस 1/v इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 0। तो अपन क्या करते हैं, इसको इन्वर्ट एंडो कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, u इक्वल्स टू v, है ना। तो ये माइनस में उधर जाने के बाद में क्या होगा, सेम। तो अपन कह सकते हैं फिर इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द सेम इन अ प्लेन मिरर। समझ में आ गया है। नेक्स्ट वन देखिए, तो क्वेश्चन देखिए अभी ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या करो, आपके दिमाग में एक डायग्राम बना लो। कॉन्केव मिरर पूछ रहा है, सीधा से निकाल देना है डायग्राम फटाकन रफली, एट ए डिस्टेंस ट्वाइस दैट ऑफ द फोकल लेंथ। तो क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे खड़ा है आपका, एंड 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी किस पे खड़ा है तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, बराबर है। 2f यानी क्या है तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो। देन द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो सेम आएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, उसका नीचे आएगा, सेम आएगा। तो रियल इमेज तो होगी, एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो रफली फिगर निकालते रहना है, हर को क्वेश्चन पूछता है तो रफली फिगर निकालना है, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, गलती नहीं होती उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या पूछ रहा है, देखो भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। फिर से कौन सा मिरर दिया आपने को, कॉन्केव। रफली फिगर निकालो, ये क्या है तुम्हारा कॉन्केव मिरर है। अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स हुज फोकल लेंथ इज 20। देखो डिस्टेंस कितना जाए तुम्हारा, फोकल लेंथ 20 है, और यहाँ पे मिरर रखा है, क्या है, इन बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट के बीच में रखा है। तो इमेज कहां पे आएगी आपकी, ये साइड में आएगी, वर्चुअल आएगी और एनलार्ज आएगी। तो यहाँ पे दिया है क्या, वर्चुअल और, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है क्या, गुड। नेक्स्ट वन देखिए, हाँ पढ़ो क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। सेम मिरर दे रहा है आपको, कॉन्केव मिरर ही दे रहा है ना, ये कॉन्केव मिरर दिया है। हाँ, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10। देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी किस पे दिया है तुम्हारा, एफ पे दिया है, और ये भी डिस्टेंस 10 है और ये भी 10 है। तो कहां पे आएगा, वेरी गुड। तो क्या है, इन्फिनिटी में इमेज आएगी, इट विल बी द हाईली मैग्नीफाइड, है ना, बहुत बड़ी हो जाएगी। और इमेज कहां पे आएगी आपकी, इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय द कॉन्केव मिरर इज -1। अब मैग्निफिकेशन कॉन्केव मिरर में -1 आना चाहिए। कब आएगा, मैंने बताया रियल होता है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। 1 आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज क्या है, सेम है ना। तो यहाँ पे देखो, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर पे होता है ना, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर और इमेज क्या है, सेम है ना। तो ये क्या है, समझो, जो भी क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी सपोज x है, और यहाँ पे भी क्या है, x नेगेटिव में है। तो क्या हो गया तुम्हारा,
x बाय माइनस एक्स, यानी कितना आ गया -1, बराबर। तो -1 आना चाहिए, तो कौन सा आ गया तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट है ना। द नेक्स्ट वन देखिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय द प्लेन मिरर इज +1, प्लेन मिरर +1 है। व्हाट डज दिस मीन्स, +1 है, प्लस का मतलब क्या बताया मैंने, वेरी गुड, द इमेज इज अ वर्चुअल, पर मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज आल्सो द सेम, है ना। तो वर्चुअल है, प्लस इसका मतलब क्या है, इमेज इज अ वर्चुअल, करेक्ट है। और 1 आता है, इसका मतलब क्या है, प्लस आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्चुअल, और सेम आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो सेम है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों भी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, सेम है। और दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, है ना, मिरर से क्या है तुम्हारा, इसका मैग्निफिकेशन क्या है, और तुम्हारा -v/u, बराबर है। जब ये 1 आता है, इसका मतलब क्या है, v इक्वल्स टू क्या आ गया, u, जितना इमेज डिस्टेंस है उतना ही क्या है, 3 कैलकुलेशन निकल गया अपने, बराबर है। क्या है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है उसका सेम है, और क्या है इसमें वर्चुअल है ना, और साइज भी उसकी सेम है। द नेक्स्ट वन देखो, यूजिंग द मिरर फॉर्मूला प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस v, सेम वही क्वेश्चन है, करे v ऑफ द प्लेन मिरर, सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं फिर अभी, फॉर्मूला लिखना है, इसमें खाली f क्या लिखना है आपको, इन्फिनिटी, और 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो फिर u इक्वल्स टू v आएगा आपका रिलेशन, है ना। मिरर फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला क्या है आपका, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, डाल दो, वैल्यूज लिखी तो सीधा सीधा आ जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, देखो अभी क्या है, मिरर कौन सा दिया अभी उसने, कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। 15 लेता है तो नेचर कैसा है, हमेशा कहेंगे, अब मिरर कौन सा है तुम्हारा, कॉन्वेक्स है ना। तो चलो अपन कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है अपने को, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, तो यू कितना दिया है आपको, -10 सेंटीमीटर, बराबर। द फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ कितना है इसका, u क्या आ गया बेटा, प्लस आएगा, क्या बताया मैंने, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, प्लस कभी नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, समझे, याद रखो, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव, देता नहीं इस पे, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी रहता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको नेगेटिव ही लेना है, याद रखो, मैग्नीट्यूड 10 दिया तो पॉजिटिव लूंगा ऐसा नहीं होता है, क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ किधर आएगा, ये साइड को आएगा, बराबर है। फोकल लेंथ क्या होगा कॉन्वेक्स का, 15, एफ कितना हो गया आपका 15, तो निकालना क्या है आपको, क्वेश्चन मार्क क्या निकालना है आपको, v निकालना है। फॉर्मूला पता है आपको, क्या है फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, सही है। तो डाल दो वैल्यूज, तो 1/-10 प्लस 1/v, पता नहीं है आपको, करना है, और f कितना है आपका 1/15, तो -10 में इधर लेके जाके क्या करूंगा, उसको प्लस कर दूंगा, बराबर। तो क्या आ गया 1/v इक्वल्स टू कितना है, 1/15 प्लस 1/10, सही है। तो इसको एडिशन कर सकते हो आप, ठीक आता है क्या, चलो कोई बात नहीं। देखो कितना आ गया तुम्हारा 150 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 1/v, 25/150, 25 6 जा, तो v कितना आ गया, v कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कहां पे जा रही है आपकी, वर्चुअल जा रही है, बराबर है, वर्चुअल जा रही है। तो v कितना आ गया आपका, v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फिर नेचर बताना है आपको, नेचर कैसा है इसका, नेचर कैसा है, वर्चुअल 1, है ना। पॉजिटिव आता है तो इमेज क्या होगा तुम्हारा, नेचर क्या है उसका, वर्चुअल, और कितना डिस्टेंस निकाले, पोजीशन निकाले अपन, पोजीशन क्या है इसकी 6 सेंटीमीटर, तो नेचर क्या है इसका, वर्चुअल, है ना, तो इसका नेचर है, समझे। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू, अभी कौन सा मिरर ले रहा है, कॉन्वेक्स ही ले रहा है, देखो
फोकल लेंथ क्या होगा उसका, नेगेटिव। देखिए एन ऑटोमोबाइल हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 3। देखो क्या दिया उसने, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस दिया है, तो फोकल लेंथ कितना आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अरे बोलो, सोचो सोचो, दो ही ऑप्शन है अपने पास, प्लस या माइनस। फिर से सोचो, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस तरह से, तो कहां पे फोकस उसका प्लस आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, अभी समझ में आ गया। फोकस कितना है, प्लस 3/2, बराबर है, तो कितना आ गया फिर 1.5 मीटर। फोकल रेडियस की कितना होता है आपका, आधा होता है, फोकल लेंथ निकल गया, फोकल लेंथ क्या आ गया इसमें, पॉजिटिव। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द बर्स्ट लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो बर्स्ट लोकेटेड क्या है, 5 मीटर है, तो इसका मतलब यू क्या दिया है उसने अपने को, -5। यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव माइनस लेना है, कुछ भी रहने दो, यू हमेशा नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन निकालना है, क्या निकालना है आपको, वी निकालना है, बराबर। नेचर निकालना है, कैसा है ना, आपको समझ में आएगा, पॉजिटिव आता है तो नेचर क्या है, नेगेटिव आता है नेचर क्या है। साइज ऑफ द इमेज, तो इसकी साइज क्या बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, वो भी निकालना है। क्या लेना है आपको, टेक द हाइट ऑफ द बस, दिया है आपको हाइट ऑफ बस, दिया है हाइट ऑफ द बस, एंड ऑब्जेक्ट कितना दिया आपको 5 मीटर, अरे बहुत बड़ी बस है, हाइट ऑफ बस कितना है तुम्हारा 5 मीटर। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले अभी मिरर फॉर्मूला निकल के वी निकालेंगे, वी निकालने के बाद में आपको आइडिया आ जाएगा, है ना, क्या फॉर्मूला बोलो, 1/u प्लस 1/f, करेक्ट है, तो u कितना दिया इसमें आपने को, -5, लिखो 1/-5 प्लस 1/v दिया है क्या आपको, नहीं, f कितना दिया है आपको 1.5 मीटर, बराबर है, 1/1.5 या तो 3/2 लिख सकते हैं आप, 2/3 आएगा, है ना। तो ऐसे करना, ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी क्या करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, बराबर है, तो कितना आएगा 1/v इक्वल्स टू 1/1.5 प्लस 1/5 प्लस हो गया, एडिशन कर जाएगा, 1.5 को 10/15 लिखूंगा मैं, लिख सकते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो 1/v इक्वल टू 10/15, ऐसा होता है क्या, मल्टीप्लाई बाय 10 करा, डिवाइड बाय 10 कर दिया, प्लस 1/5, 1/5 को 3/15 लिखूं, चलो, तो 1/v इक्वल टू 10/15 प्लस 3/15, तो v कितना हो गया आपका 15/13, क्या v कितना हो गया 15/13, है ना, v/15/13 बोलते कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मैं नहीं करता हूं, तो क्या है v की कितना है तुम्हारा 15/13, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी आ गया आपके पास, है ना। तो और क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ इमेज दिया है उन्होंने, कितना दिया है 5 मीटर, तो क्या निकालना था अपने को, और साइज ऑफ द इमेज भी निकालना था, यानी क्या निकालना था, हाइट ऑफ इमेज निकालना था, बराबर, ये क्वेश्चन था अपना। मैग्निफिकेशन पता है आपको, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अदरवाइज -v/u, सही है, बोलो बेटा, सही है ना। तो अभी हाइट ऑफ कितना है, हाइट ऑफ इमेज कितना है आपका यहाँ पर निकालना है, चलो निकाल देंगे, hi लिख देंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया आपको 5, v कितना दिया आपको -15/13, -15/13 डिवाइडिंग बाय u कितना दिया है आपको -5, बराबर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, सेम 15/13 ही आएगा ना। हाइट भी कैसे आई इमेज की तुम्हारी, पॉजिटिव आई, है ना, तो हाँ पॉजिटिव आई, और अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग कुछ आई, वो तो ऑब्जेक्ट से हाइट क्या है, छोटी है, डिमिनिश हो गया है, साइज कैसी होगी इमेज की, साइज डिमिनिश वर्चुअल, समझ में आ रहा है, हाँ बोलिए, क्वेश्चन बताना है, उसके पहले का बताना है, अच्छा चलो ये बताओ, क्या ये बताओ, ये देखिए, तो ये बोल रहे हैं, ये देखिए, ये क्या, हाँ देखिए,
इसमें क्या पूछा है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, है ना। कॉन्केव मिरर के ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है आपका, 10 सेंटीमीटर में लिखा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, बराबर है। यू इक्वल टू 10। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10। फोकल लेंथ भी कितना दिया है आपका, 10। हाँ, दोनों -10 रन दो, है ना। फोकल लेंथ आपको फिगर पता है इसका, फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे आती है उसकी, कॉन्केव मिरर में इन्फिनिटी पे आती है ना। देखो आपको फोकल लेंथ यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ पर है। प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है यहाँ से, पैरेलल कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर। दोनों भी कैसा नहीं आता, जीरो नहीं आएगा, जीरो। तो करके देखो सॉल्व, देखिए करेंगे सॉल्व, देखिए सॉल्व करना है, देखो कोई बात नहीं। तो u कितना है पे इसमें, -10, है ना। 1/0 आ रहा होगा आपका, 1/0 आ रहा होगा, तो 1/0 यानी तुम्हारा इन्फिनिटी हो गया। तो f कितना है आपका, f कितना है, -10, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो कितना हो गया, 1/-10 प्लस 1/v इक्वल टू 1/-10। तो 1/v कितना हो गया, 1/-10 प्लस 1/+10। हाँ, तो 1/v इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 0/1, सॉरी 1/0, करेक्ट है क्या। देखो ये क्या है, 0/1। तो v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू 1/0, 1/v इक्वल टू 0/1, कुछ भी है ना ये। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 1/0। तो डिनोमिनेटर में 0 होता है, इसका मतलब क्या है, नंबर क्या है वो तुम्हारा इन्फिनिटी है, करेक्ट है। तो v कितना आ गया आपका, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम से भी, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायग्राम भी कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गया। देखिए अभी कौन सा चल रहा था अपना, देखिए क्वेश्चन नंबर, इधर है दो। A concave mirrors produces 3 times the magnified or enlarged image। तो क्या है, कॉन्केव मिरर है तो कैसी इमेज दे रहा है आपकी, 3 गुना बड़ी दे रहा है। इसका मतलब क्या है, लेट वी कंसीडर हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट विद x एंड हाइट ऑफ द इमेज कितने हो गया आपकी 3x। इनडायरेक्टली आपने को ये बात दे दिया है, एनलार्ज हो रहा है ना। रियल इमेज, और कैसी आ रही है इमेज आपकी, रियल आ रही है, इसका मतलब ये साइड में आ रही है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव है, वेरी गुड। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया आपका, -3x डिवाइडिंग बाय x, यानी मैग्निफिकेशन कितना हो गया उसका, m इक्वल टू -3। जो समझता है वो निकाल लेना है ना। -3 इक्वल टू कितना है तुम्हारा, -3 इक्वल टू -v/u। तो इसका मतलब दोनों का रेशियो भी कितना है, v/u का रेशियो भी कितना है आपका 3 है। v 3 है तो रेशियो उनका दोनों का 3:1 है। द रियल इमेज, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना है तुम्हारा, u कितना दिया है आपको। ऑब्जेक्शन हमेशा क्या होता है तुम्हारा, माइनस होता है ना। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपकी इमेज कहां पे आएगी। तो u 10 -10 देता है तो v क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन क्या है उसका, पॉजिटिव है, बराबर है ना। तो कितना आएगा, अपन देखिए मैग्नीफिकेशन कितना है उसका 3 है ना। 3 इक्वल्स टू कितना है, -v/u। तो 3 -v पता नहीं, u कितना है तुम्हारा -10, माइनस क्या हो गया, तो v कितना आ गया 10 × 3 प्लस आया, प्लस आया। इसका मतलब इमेज कैसी होगी तुम्हारी, ये वर्चुअल है क्या, रियल इमेज बता रहा हूं ना। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हुआ क्या मेरा लिखने में, सॉरी -3 है ना। मैग्निफिकेशन क्या है, -3 है। तो -3 × 10 -30, -30 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तुम्हारा इमेज भी क्या है, वही साइड में आई, बराबर है। मैग्निफिकेशन कितना आएगा आपका -30। और क्या निकालना था आपको, वेयर द इमेज लोकेटेड, क्या होगा उल्टा, कौन सा, ये माइनस प्लेस कर, चेंज कर, अरे -v/u, -10 था, माइनस क्या होगा तुम्हारा, ये प्लस हो गया। तो -3 मैग्निफिकेशन कितना है आपका, -3 × 10, देखो कितना मैग्निफिकेशन कितना है तुम्हारा -3 है ना। कंडीशन बताया मैंने आपको, जब इमेज क्या है तुम्हारी, देखो रियल इमेज होता है तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है, माइनस, है ना। तो फिर सीधा सीधा मैग्निफिकेशन कितना है आपका
माइनस, समझ में आ गया? हाँ, कोई डाउट इसमें? देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट एन इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश एंड द पॉइंट साइज। कौन से कंडीशन में इमेज आपकी क्या आएगी, हाईली डिमिनिश आएंगी और पॉइंट साइज आएगी? उसमें ये नहीं बताया रियल होना है वर्चुअल होना है, उसके बारे में मेंशन नहीं किया। एक्चुअली ये पार्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में आना चाहिए था अपने को, अपन लेंस अभी पढ़े नहीं, तो एक्चुअली ये कंडीशन में भी कौन के इसमें भी आती है पॉइंट में, ये कंडीशन में भी आती है, लेंस में भी आती है और इसमें भी आती है। तो सभी कंडीशंस में इमेज क्या आती है, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट जब होता है, जो आपकी इमेज क्या आएगी, आपकी पॉइंट इमेज आएगी, डिमिनिश आएगी, हाईली डिमिनिश आएगी। इसमें मेंशन नहीं किया है रियल होना है वर्चुअल होना है। हाँ, जब रियल होना है वर्चुअल होना है मेंशन करता था तो उसके कुछ ऑप्शंस कम होते थे, यानी इसमें मेंशन नहीं किया, खाली क्या होता है डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, छोटी आना है, पॉइंट साइज आना है, खत्म, इतना ही। तो चारों भी इसमें डी में तुम्हारे हर टाइम पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, जब इमेज क्या आएगी आपकी छोटी सी आएगी। क्लियर? द नेक्स्ट वन देखिए क्या बोल रहा है, सॉरी ये लेना है आपको। हाँ देखिए, ये एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम द फोकस। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, फोकस से x1 है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया आपका, x1 प्लस u, है ना, ये हो गया x1 प्लस u, माइनस लिख देंगे अपन इसको, है ना, तो मिरर कौन सा है तुम्हारा, कॉनकेव, तो ये क्या तुम्हारा माइनस लिख देता मैं यहाँ पर, बराबर। मिरर एंड इट्स रियल इमेज, रियल इमेज बोलो तो वी भी क्या है आपका माइनस ही है, बराबर है। वी कितना है आपका माइनस, रियल इमेज इन फ्रॉम एट डिस्टेंस x2 फ्रॉम द फोकस, सेम फोकस से ही कितना है तुम्हारा x2 प्लस, सॉरी ये एफ बना रहे हैं, ये एफ आएगा x2 प्लस एफ, तो u आ गया और v आ गया, दोनों भी क्या है नेगेटिव है आपके। Here is the focal length of the mirror is, तो क्या निकालना है आपको, f की वैल्यू निकालना है, सीधे सीधा फॉर्मूले में डाल देना है अपने को। फॉर्मूला पता है आपको, क्या है फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, डाल दो इसमें, तो 1/u, u कितना है आपका माइनस x1 प्लस f, बराबर, प्लस v कितना है 1/ माइनस x2 प्लस f इक्वल्स टू 1/f। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, तो x1 प्लस f इन ब्रैकेट x2 प्लस f, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा तुम्हारा x2 प्लस f माइनस प्लस माइनस इन ब्रैकेट x1 प्लस f इक्वल टू 1/f, सही है। तो अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, इधर को बेटा, इधर को ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस x2 प्लस f माइनस x1 माइनस f डिवाइडेड बाय x1 प्लस f, x2 प्लस f इक्वल टू 1/f। तो प्लस सॉरी प्लस f और माइनस f क्या होगा तुम्हारा कैंसल, तो ऊपर क्या बचेगा x1 प्लस x2 बचेगा और नीचे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा अपने को, है ना, तो 1/f इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है x1 प्लस f और x2 प्लस f। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको, माइनस एन कॉमन भी ले सकते हैं अपन, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय x1 x2 प्लस x1f प्लस f x2 प्लस f स्क्वायर इक्वल टू 1/f, है ना। तो यहां पर कुछ डिस्टेंस मेंशन नहीं किया है ना, माइनस इसका रेसिप्रोकल भी करे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। फोकल लेंथ कहां पर, हाँ माइनस ही है क्या, तो फोकल लेंथ इज अ नेगेटिव, तो उसमें कहीं गड़बड़ हुआ क्या अपना, एक बार पहले से देखो क्या, मैं कहीं गड़बड़ हुआ क्या पहले से देखेंगे अपन, है ना, तो एक बार देखिए, कहीं तो भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन सिंपल है, देखिए टाइम है ना, देखिए और देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम द फोकल, तो क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, u कितना हो गया तुम्हारा, ये फोकस लेंथ यहाँ पे है आपकी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आपका यहाँ पे x है, बराबर है, तो क्या होगा तुम्हारा
माइनस एफ माइनस एक्स, है ना, तो वही आया था, चलो ये आ गया एफ प्लस x1। v कितना आ गया, माइनस एफ माइनस x2, ये आ गया v। फोकल लेंथ बीच में क्या है, माइनस एफ है ना, अभी डाल देंगे फॉर्मूले में, तो अभी आना चाहिए। तो क्या निकालना है आपको, हेंस फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो एफ कितना है निकालना है, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो अभी डाल देंगे वैल्यूज, ये कितना है तुम्हारा, माइनस 1/, माइनस कॉमन लेता हूं मैं, एफ प्लस एक्स बराबर 1/u की वैल्यू प्लस 1/ माइनस एफ प्लस x2 इक्वल टू 1/ -f, बराबर है क्या। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो कैसा आएगा नीचे का, माइनस, इसको माइनस माइनस कॉमन निकाल दूं क्या मैं, सब तरफ माइनस है, इसमें से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं अपन, है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, तो माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस और माइनस क्या होगा तुम्हारा, कैंसिल हो गया। तो अभी सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे, तो f1 प्लस x1 इन ब्रैकेट f2 f प्लस x2, तो यहाँ पर आएगा f प्लस x2 प्लस f प्लस x1 इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 2f हो गया है, 2f इक्वल टू x1 प्लस 2f प्लस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय f1 f2, f1 f2 f सेम ही है ना, चलो f1 बाद में करेंगे, f1 f2 प्लस f x2 प्लस f x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू 1/f। f तो सबसे सेम ही है, तो यहाँ पे 2f प्लस x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाय f1 का स्क्वायर, f का स्क्वायर प्लस f कॉमन x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 इक्वल टू 1/f। इसका रेसिप्रोकल के बाद कितना आएगा, f इक्वल्स टू f1 f का स्क्वायर प्लस f इन ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 डिवाइड बाय 2f प्लस x1 प्लस x2। कहीं तो मिस हो रहा है क्या रे, तो यहाँ पे रिलेशन तो दिख रहा है इसके सिमिलरली वैसा, तो यहाँ पे कहीं तो भी गड़बड़ हो रहा है शायद, है ना, तो इसको देखेंगे अपन बाद में। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस x1 फ्रॉम द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, क्या कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, डिवाइड में नहीं हो रहा ना, यहाँ पे x1 x2 है, यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे x1 x2 आ रहा है ना, सिंपल कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए इसको फिर से एक बार सॉल्व करेंगे अपन, इसको बाद में देखेंगे, हाँ ये दिमाग में क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर कौन सा, स्लाइड नंबर कौन सा, 39, हाँ देखेंगे इसको 39 को। फिर से देखिए, ये देखो, a student wants to project the image of an candle of flames on the screen is 60 centimeters in front of the mirrors by keeping the flame at a distance of 15 centimeters from its pole। निकाल सकते क्या हो, क्या बोल रहा हो, इमेज ऑफ कैंडल्स फ्लेम्स ऑन द स्क्रीन ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम इट्स पोल। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, क्या बोल रहा है वो, स्टूडेंट्स वांट्स प्रोजेक्ट्स द इमेज, यानी क्या जाए आपको, वी करना है, वी कितना जाए आपको 60 सेंटीमीटर जाए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी इमेज कैसी तुम्हारी रियल है, बराबर है, तो वी क्या है आपका -60 जाए, समझ में आया, सेंटीमीटर जाए क्या, हाँ, बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी यू दिया है तुम्हारा -15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो क्या निकालना है आपको, राइट द टाइप्स ऑफ मिरर इट शुड यूज। तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर निगेटिव आना है, इमेज रियल आ रही है, रियल आ रही है इसका मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को, है ना, कॉनकेव और मैग्नीफाइड आ रही है, तो प्लेन मिरर तो नहीं हो सकता, प्लेन मिरर में सेम ही साइज आती और कॉनकेव आएगी। कौन सा है मिरर तुम्हारा, कहाँ है नंबर, राइट द मिरर्स, राइट द टाइप्स, अरे अलग अलग क्वेश्चन है, ओके, राइट द टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज, तो यहाँ पे कॉनकेव आ गया, कौन सा, हाँ यहाँ पे क्या पूछा उसने, देखो इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम्स ऑन 60 सेंटीमीटर्स, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या है कैंडल कैसी आ रही है तुम्हारी, इमेज कैसे आ रहा है तुम्हारा, रियल आ रहा है ना, वांट्स प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन 60 सेंटीमीटर
इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर यानी कैसा आ रहा, मिरर के आगे, मिरर के आगे यानी कौन सी इमेज हो रही है आपकी, रियल वन है ना, वर्चुअल का बिहाइंड द मिरर आता है ना, तो क्या बोल रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर आ रहा है, जिसका मतलब ये कौन सी की तुम्हारी रियल इमेज, तो रियल में क्या आ गया तुम्हारा -60 आ गया, माइनस ये आता है तो तुम्हारा कौन सा मिरर होगा तुम्हारा, ये कॉनकेव आ गया, बराबर है। एंड डिस्टेंस कितना जाए 15 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव लिखेंगे अपन। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन -v/u है ना, -60 माइनस क्या होगा तुम्हारा +15, 15 चौक 60, माइनस आ रहा है क्या, -4। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो कितना है तुम्हारा 60, देखो अभी ये देखो, हाँ यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ये 15 है और ये कितना है तुम्हारा 60 है, तो यहाँ से 60 में से 15 डालना पड़ेगा आपको, 45, 60 -15, यहाँ से डिस्टेंस 60 है और यहाँ से डिस्टेंस क्या है 15 है, तो ये आपको ये डिस्टेंस निकालना है, इतना ही, 60 में से 15 डालना पड़ेगा, कितना आएगा, माइनस का, हाँ डिस्टेंस निकालना है खाली, माइनस में आए तो भी चलेगा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड खाली है ना, ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है। द ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ इन दिस केस, तो आपको रे डायग्राम भी निकालना है, तो रे डायग्राम के लिए क्या करोगे आप, मिरर क्या है तुम्हारा कॉनकेव है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पर 15 पे है और मैग्निफिकेशन क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा रफ रे डायग्राम है, तो ये डिस्टेंस कितना तुम्हारा 15 और ये क्या है तुम्हारा 60 है ना, तो ये तुम्हारा रफ रे डायग्राम हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला देखिए, state the relation between the object distance, image distance and the focal length of the concave and convex mirror. Concave mirror is produces the two, तो रिलेशन तो पता है, रिलेशन का मतलब क्या है तुम्हारा, मिरर फॉर्मूला, रिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे बताया उसने, क्या बोलो, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इसका मतलब 1/u + 1/v = 1/f, पहला आंसर हो गया अपना। A concave mirror produces 2 times the magnification of real image, तो रियल इमेज आ रही है, मैग्निफिकेशन कितना है तुम्हारा 2 टाइम, रियल इमेज मैग्निफिकेशन क्या होता है हमेशा नेगेटिव है ना, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया उसका -2 हो गया, बराबर है, मैग्निफिकेशन क्या हो गया उसका -2, तो -2 यानी क्या है, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u, ये कितना है तुम्हारा -2 है, इनडायरेक्टली उन्होंने अपने को दिया है, द रियल इमेज दिया है, द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया, u कितना दिया अपने को उन्होंने -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -10 डाल दो, v और क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी क्या निकालना है आपको, यहाँ पे v निकालना है, बराबर है, पोजीशन निकालना है आपको कहां पर है, तो -2 इक्वल टू -v/-10, करेक्ट है, माइनस माइनस कैंसिल, v कितना आ गया फिर 20, गलत हुआ है क्या, हाँ ये माइनस, वेरी गुड, ये क्या है माइनस, ऊपर का भी है ना, तो v कितना है तुम्हारा -20 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट वन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज मूविंग ऑटोमोबाइल्स इज 2 मीटर, देखो अभी क्या है तुम्हारा ऑटोमोबाइल के लिए इस्तेमाल कर रहा है मिरर, ट्रक इज कमिंग बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड एंड द डिस्टेंस ऑफ 3.5 डिस्टेंस दिया है ना, ये मिरर कौन सा दिया है, इसका मतलब इनडायरेक्टली कॉनकेव मिरर दिया है, अपने कहाँ यूज पता है उसके, अपने कॉन्वेक्स मिरर दिया है, मिरर कैसा है तुम्हारा ये कॉन्वेक्स है ना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर ऑफ मूविंग इज ऑटोमोबाइल इज 2 मीटर, तो कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ क्या आएगा कॉन्वेक्स मिरर का 1, पॉजिटिव आएगा क्या, पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड, ट्रक इज कमिंग बिहाइंड एंड द डिस्टेंस एट द डिस्टेंस ऑफ 3.5, तो u कितना हो गया उसका माइनस द साइज ऑफ द इमेज, तो क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, इसका मतलब hi निकालना है आपको, साइज ऑफ द इमेज ऑफ रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, तो इस दोनों का रिलेशन निकालना है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ट्रक का दोनों का रिलेशन निकालना है, फोकल लेंथ आपको दिया है, तो फोकल लेंथ से क्या करेंगे अपन v निकाल लेंगे और दोनों का रिलेशन निकालना है, कितना छोटा है और कितना बड़ा है, तो क्या करेंगे सेम वही अपन 1/u + 1/u = 1/f, तो v कितना है आपका, u कितना है 1/-3.5 + 1/v 1/1,
तो v कितना आ गया आपका 1 प्लस 1/3.5 3.5 प्लस 1 कितना आ गया, सॉरी 1/v क्या है 1/v है ना, इधर के बाद क्या हो गया 1 प्लस 3.5, तो 1/v इक्वल कितना हो गया तुम्हारा 3.5 प्लस 1/3.5 दैट इज 1/v इक्वल टू 4.5/3.5, तो v कितना आ गया आपका 3.5/4.5 बराबर है, v कितना आ गया आपका 3.5 डिवाइड बाय 4.5, ये आ गया आपका v। तो और क्या करना है, साइज निकालना है, तो साइज के लिए मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन माइनस v बाय u बराबर, तो ये कितना है अपना v कितना है माइनस 3.5 डिवाइडिंग बाय 4.5 डिवाइडेड बाय u कितना है आपका -3.5, तो कितना -3.5 डिवाइडिंग बाय 4.5 मल्टीप्लाई 1/3.5 माइनस माइनस क्या होगा तुम्हारा कैंसिल, और कैंसिल हो गया तो 1/4.5 ये क्या तुम्हारा मैग्निफिकेशन आएगा, समझ में आ गया है। देखिए उसके बाद में क्या क्या पढ़े अपन ने आज, साइन कन्वेंशन ऑफ द एंड फॉर्मूला, कहाँ पॉजिटिव लेना है कहाँ नेगेटिव लेना है, मिरर फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, द न्यूमेरिकल वे बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला अपन ने आज टॉपिक में देख चुके हैं। तो और क्या क्या है इसमें देखो, जो होमवर्क दिया है आपको, शायद आप मेरे ख्याल से होमवर्क कर सकते हो, कर लेंगे अपन फटाफट यहाँ पे। देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, देन द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, सीधा निकाल सकते हैं आप। क्या पूछा है, प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर हुज फोकल लेंथ इज 20, वो तो इन बिटवीन पोल एंड फोकल दिया है, तो कैसे आएगी आपकी, वेरी गुड, वर्चुअल और हाँ डिमिनिश आती क्या बेटा, कॉन्केव मिरर में इमेज कभी डिमिनिश नहीं आएगी, वर्चुअल जो आती है तो हमेशा एनलार्ज आएगी, तो वर्चुअल एंड होता है। देखिए तो नेक्स्ट वाला देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ही दिया है, फाइंड द पोजीशन एंड द इमेज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी आ रहा है क्या, चलो डाल दो, अरे वही क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, रिवर्स तो नहीं जा रहे अपन। देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय द कॉन्केव मिरर इज -1, सी में क्या, हाँ अब भी करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो क्या होगा तुम्हारा, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा सेम होगा, रिपीट है ना। तो उसके बाद में देखिए द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय द प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट्स मीन, ये भी हो गया सेम है क्वेश्चन, वेरी गुड। तो ये हो गया ना अपना, ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द कॉन्केव मिरर गेट्स द इमेज एट द सेम पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, सेम पॉइंट पे इमेज आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकल लेंथ आधा है उसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना, तो इसका मतलब कितना आएगा ये, हाँ अभी यहाँ पे 15 दिया है, कौन सा मिरर है हमारा कॉन्केव, तो यहाँ पे हाँ ये लिखना पड़ेगा -15 आएगा है ना, तो क्या है तुम्हारा 15 लिखते तो अपना आंसर गलत होता था। अभी उसके बाद में देखिए ये है ना, देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर दिया अभी ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज, तो क्या है पोजीशन निकालना, नेचर आप पता है कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका नेचर क्या होगा तुम्हारा, हमेशा वर्चुअल में होगा, रेक्ट होगा, डिमिनिश होगा, इतना भी आपको समझ में आया, नहीं भी निकाले तो पोजीशन के मार्क, नेचर के मार्क और इमेज के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अभी क्या निकालना है आपको, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है उन्होंने 10, तो फॉर्मूला में डाल दो, u कितना है तुम्हारा -10, f कितना है आपका +10 है क्या, नहीं 15 है, सॉरी 15 है, v निकालना है ना, फॉर्मूले में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। तो नेक्स्ट वन ये होगा ना, ये है अभी है ना, देखो ये भी शायद देखो कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यूज एट, ये होगा ना, सेम कैसे दे रहे हैं एग्जांपल, ये था ना अभी ये, हाँ गलत हुआ क्या अपना, हाँ वो देखेंगे ना, एक मिनट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज मूविंग, ये हो गया क्या, ये भी हो गया 52 के बाद में 53, और कॉन्वेक्स मिरर ये भी हो गया, एक मिनट वो भी देखेंगे 54, ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज
is placed 25 centimeter in front of the concave mirror of the focal length 15 centimeters. At what distance in front of the should be the screen we place? and screen निकालना है, क्या निकालना है आपको? इमेज निकालना है. Obtain the sharp image, find the nature of the size of the image. निकाल सकते हैं आप. डाटा दो क्या है, जरूरत नहीं है. हाँ चलो तो नेक्स्ट वाला देखेंगे. ये देखो 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस इन 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर. अब फोकल लेंथ दिया है इसमें, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज. सेम वैसा ये निकाल सकते नहीं ये भी. हाँ ट्राई करो, नहीं आया तो फिर पूछो मुझे. The next one, the spherical mirror and the thin spherical lens, how the each of the focal length is minus 15 centimeter. Lens, sorry, length है. The mirror and the lens, अभी आपके लिए ये क्या इसका? The mirror is convex and the lens is convex. अभी आपके लिए मिरर आप लेंस नहीं हुआ है ना, तो अपना लेंस का हो जाएगा पॉइंट, फिर जब तो आपको समझ में आएगा, जब तक तो करेक्ट है. तो नेक्स्ट वाला देखिए. Point object is placed at the mirror. Place in the middle of the two concave mirror. The focal length of each mirror is 10 centimeter. Obtain the single image of the point objects. The distance between the two mirrors in centimeter will be. क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ कर सकते हो सॉल्व? हाँ नहीं समझे. देखो क्या बोल रहा, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द मिडल ऑफ द टू कॉन्केव मिरर. कैसा कर रहा है तुम्हारे दो कॉन्केव मिरर के बीच में रख रहा है ना. द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन मिडल द टू कॉन्केव मिरर. तो कॉन्केव मिरर है तो बीच में क्या रख रहा है तुम्हारा, एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहा है, यहाँ पे रख दिया है ना. तो द फोकल लेंथ ऑफ ईच मिरर इज 10. तो इसका भी कितना है तुम्हारा, सपोज ये 10 है, फोकल लेंथ दिया है उसका 10. ऑब्टेन द सिंगल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो सिंगल इमेज आना है पॉइंट ऑब्जेक्ट की. सिंगल इमेज होना है इसका मतलब इधर नहीं आना है, इस पे आना है. क्या इमेज का है अपने को, उधर जाना है. पॉइंट ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर इन द सेंटीमीटर विल बी. तो क्या है, तो 2 सेंटीमीटर तुम्हारे यहाँ पे है, समझो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे है ना फोकल लेंथ पे. कहीं ऑब्जेक्ट दूसरा मिरर का ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पे आ जाएगा, वर्चुअल इमेज का फिर इमेज आएगा. बराबर है कि नहीं. इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका भी कितना है, फोकल लेंथ 10 है ना. आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में फोकल लेंथ के इधर रखता हूँ, तो इसकी इमेज इधर ही आएगी. बराबर है कि नहीं. उसकी इमेज कहाँ पे आएगी, इधर. इधर कोई आएगी क्या, इमेज आएगी क्या, नहीं. हाँ जब मैं वर्चुअल इधर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बड़ा. फिर इसका इमेज फिर कहीं तो मिलेगा आपको, है ना. तो वैसा नहीं चाहिए, उन्होंने क्या बोला, एक ही पॉइंट का इमेज चाहिए. इसका मतलब इमेज क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ के इधर होना चाहिए, फोकल लेंथ से भी ज्यादा, नहीं 10 से ज्यादा, है ना. कुछ भी लिख सकते हैं. देखिए नेक्स्ट वाला देखिए. 1.2 centimeter long pin is placed in perpendicular to the principal axis of a convex mirror of the focal length 12 centimeters at the distance of 8 centimeter from its. इसमें निकालना है, फाइंड द फोकल लेंथ. लोकेशन निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला है. ट्राई करो, नहीं तो देखेंगे अपन फिर से. तो इतना ही शायद इसमें मेरे ख्याल से. 10 millimeters long will pin is placed vertically in front of the concave mirrors. 5 mm long image reveal in front of 30 centimeters. अब यहाँ पे देखो मिलीमीटर दिया है और सेंटीमीटर दिया है, शायद आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, कन्वर्ट कर लो इसको. तो आज के टॉपिक में इतना ही है. कुछ डाउट से तो अपन बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ी देर से. वो देख लेंगे, डाउट्स वगैरह देख लेंगे. और कोई बात देखना है ओके. क्वेश्चन लिख लेंगे आपने 139 वाला, लिख लेंगे. चलो